What Huntington has said about the civilization. He has entitled this chapter as The Civilizations in the History and Today. Let's know more about it, about this chapter from Arif sir. थैंक यू शुएब साहब। मैं उसी डिस्क्लेमर से बिगिन करना चाहूँगा कि जो भी ये व्यूज़ हम दे रहे हैं अंडर लाइसम स्टडी ग्रुप के तहत, these views are very much personal and it has nothing to do with the official positions which either you or me or your students here or some person sitting here are having. And these views are shared while exercising Article 19, subclass 1 of our Constitution, which talks about freedom of speech and expression. And also, I would like to say that I share this view under the blanket, under the one of the fundamental duty. Article 51A talks in one of the fundamental duty is say like that, कि we must develop scientific temper, intellectual dimensions, and reforms. So these views are shared with that context of carrying out the research in the field of literature. Yeah, the chapter 2 of this book is titled In Clashes, Civilizations in History and Today. तो कल हमने सर चैप्टर 1 किया था, तो इट वाज वेरी गुड, रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहा, बहुत इंटेलिजेंट से एक्टिवेट भी रही। तो आज जो हमारा चैप्टर रहेगा इसी पे कन्फाइंड रहेगा, सिविलाइजेशंस इन हिस्ट्री एंड टुडे, as we are reading and we will present Huntington here, and what is not Huntington we will make a criticism of it, and whatever we are saying let the Huntington speaks for himself. That is the book review. Objective approach is like that. Huntington says that history of the world is the history of civilizations, because he's looking, he has written a book. He will look at the things at one vintage point. He begin in this chapter that the human history is the history of civilizations. There is no other tool of analyzing the history. Religion, language, culture, dress, tribes, nations, they all are in one way or the other way just representatives of any particular civilization. They can't live outside the civilization. So that is what Huntington has begun, and he has said it, and he has quoted various authors. Obviously, one of the famous author which he has quoted, Arnold Toynbee, who has written a lot extensively on history of civilizations. He has written a lot. Arnold Toynbee is a historiographist, is a historian who has, and even he has also talks about Gibbon, he has talked about Emmanuel Wallerstein, Emile Durkheim, he has talked about so many others. These scholars in one way or the other way have adopted civilizational approaches to the sociology, civilizational approaches to the politics, civilizational approaches to the culture, civilizational approaches to the religion, and he has presented his viewpoint that whatever is that intellectual, diplomatic or political discourse, even in the ancient to the medieval, even to the modern and to the postmodern times, it was, it is, it will be civilizational. Okay. And he's also talking about that civilization is a cultural entity. Culture is broader than religion. Religion is one aspect of culture. Religion is a part of culture. You can say that. Culture includes, what is the definition of culture? Culture is a way of life. It includes customs, usages, attitudes, aptitudes, orientations, and Huntington is saying that civilization is a cultural entity which is a broader entity which accommodates each and every aspect which people in collectivity they do. एक जमात में जब वो देंगे, मैं थोड़ा सा एक शेर बताऊंगा फिराक गोरखपुरी साहब का, जब उसने हिंदुस्तान की तशखीस की, तहजीब और तमद्दुन की, मैं थोड़ा सा इससे हटके इसको बताने के लिए, उसने कहा सर जमीन हिंद पे अकवाम आलम के फिराक के, जब उसने हिंदुस्तान की तशखीस की, इस तरह की किस तरह एक कल्चर की तशखीस होती है, सरजमीन हिंद पे अकवाम आलम के फिरा के, पीपल ऑफ डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट ट्राइब्स केम, कारवां आते गए हिंदुस्तान बनता गया. So he is saying that how a culture give identity to a particular country. Likewise, civilizations play an important role, and culture is inclusive as well as exclusive.
Huntington is accepting that because in the very first chapter he said the creation between we and they, who we are what we are not. We are English. Why we are English? Because we are not French. We are Protestants. We are Protestants. Why? Because we are not Catholics. We are Shias. Why we are Shias? Because we are not Sunnis. We are Hindus. Why we are Hindus? Because we are not Muslims. We are Asians. Why we are Asians? Because we are not Africans. We are Orients. Why we are Orients? Because we are not Occidents. We are Anglicianists. Why we are Anglicianists? Because we are not other species, other race. So this we and they will keep coming and going, and the people will be kept inside and outside of the civilization. As he talks about history, and he is beginning with the Greeks. He said that the biggest civilizational why the Greek people did not. I'm just interpreting him. एक मिसाल दे रहा हूं सर. आप देख लीजिए ग्रीक में सोक्रात भी था, प्लेटो भी था और एरिस्टोटल भी था, लेकिन एरिस्टोटल को उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया. Because Greeks, he was within Greek, Athens was the center of civilization. Okay, and by birth, Aristotle was non-Athenian, and from beginning with, he's saying that blood, language, religion, race were the part that Greek had in common, and what distinguished them from the Persians and other non-Greeks. This is page number 42. Okay, and within Greek, there was a center of epicenter of civilization was Athens. मैं सिर्फ मिसाल के लिए आपको बता रहा हूं. सुकरात को तो उन्होंने मारा था, एथेनियंस ने ही मारा था. एथेनियन ही था लेकिन किसी और वजह से मारा था. प्लेटो को डिस्पाइट, प्लेटो ने भी सुकरात की ही बात कही, लेकिन नफरत भी करते थे, लेकिन उसको रेस्पेक्ट भी करते थे बिकॉज ही वाज फ्रॉम द नोबल क्लास. एरिस्टोटल को एक्सेप्ट ही नहीं किया उन्होंने, और एरिस्टोटल को हिजरत करनी पड़ी, भागना पड़ा ग्रीक से, एकेडमी से भागना पड़ा, और आउट ऑफ एथेंस आ गया, स्टेजिरा में स्कूल खोलना पड़ा, लाइसियू. और एरिस्टोटल का एक कोट है, वो ये कहता है, नॉट टू अलो देम टू डू सेकंड क्राइम आई लेफ्ट एथेंस. एंड व्हाट वाज फर्स्ट क्राइम? फर्स्ट क्राइम वाज द मर्डर ऑफ सोक्रात. And Aristotle was thinking that they will kill me also. So from this vintage point, if I analyze the clashes of civilizational discourse, which has given the example of Greeks and the barbarians, that these civilizational linkages and civilizational inclusion and civilizational exclusion was from day one. And in medieval world, there was a talk between, laxes and laxes. Some terms are like that. That upper races and lower races, upper classes and lower classes, lords and serfs. But he is looking at, just like Karl Marx is looking at the history from the vintage point of class struggle, Mr. Huntington is looking at the whole history from the vintage point of civilizational inclusion and exclusion. And he came to the modern world when the discovery of new sea routes, Renaissance, Reformation, advancement in the industrial revolutions, and birth of modern European countries with their language, with their religion, commonness, the nationalism doctrine, okay, uniformity in culture, race, religion. They were obviously Treaty of Westphalia, nation state, and nation state was based on oneness, one race, one culture, one religion, one language. So he's looking, Huntington is saying that it was civilizational nation states. He's talking about then the building civilizations. He began with Japanese. He talks about Hindu civilization, the Aryan civilization, page number 45. Huntington say one or more successive civilizations, it is universally recognized, have existed in the subcontinent since last 1500 BC. And what was the 1500 BC? 1500 BC was the time when Aryans came from Iran to India. Indo-Aryan age began. Hind-Irani age थी 2500 BC. कहते हैं आर्यन एशिया कोचिक से आए, वो ईरान में गए, 2500 बीसी में ईरान में पहुंचे. 2500 बीसी से 1000 बीसी तक, वो 1500 बीसी 1000 साल का दौर है सर, वो ईरान में रहे, और हिंदुस्तान में 1500 बीसी में आए, और यहां पर एक सिविलाइजेशन की दाग बेल डाली. एंड हंटिंगटन हैज कवर्ड दैट इन 45, age में 45. Okay, and then he's talking about Islamic civilization, obviously with the birth of Prophet, from to Khilafat door, then to Umayyad door, then to Abbasis door, then to national जो Turks का, ये तमाम चीजों को कवर करता है, कवर करता है ये ओटोमान्स तक, ओटोमान्स की खिलाफत की डिसलॉज होने तक वो कवर करता है. देन लैटिन,
उर्दू में खिलाफत उस्मानिया उस्मानिया जिसको पहले। कहते थे, क्योंकि वी हैव टू मेक ए रिव्यू आउट ऑफ इट एंड वी कांट गो टू द लाइन बाय लाइन. ठीक ठीक ठीक। खिलाफत उस्मानिया, फ्रॉम बर्थ ऑफ प्रॉफिट टू द डिसलॉजिंग ऑफ खिलाफत उस्मानिया, उस्मानिया। एंड इट वाज इन द हिस्टोरिकल सेंस. देन लैटिन अमेरिका की बात करता है सर. लैटिन अमेरिका में ये बात करता है, डिस्पाइट दे वर क्लोज टू यूरोप एंड अमेरिकन, दे स्टिल हैव देयर ओन आइडेंटिटी, जिसमें सर वो लेकिन इस सिविलाइजेशन, दो तीन सिविलाइजेशन को वो इतनी एग्रेसिव, देखिए एक हमने जेनेटिक्स पढ़ा है सर, थोड़ा सा जेनेटिक्स पढ़ा है. मैं ये भी फील करता हूं कि उसने इसका यूटिलाइजेशन किया है, जिसको मैं कहूंगा पॉलिटिकल डार्विनिज्म. जीन का जो उसका जो उसने जेनेटिक थ्योरी दी थी मेंडल ने कहा था रिग्रेसिव जीन, सप्रेसिव जीन, और एक जीन होगा जो इंडिपेंडेंट अजार्टमेंट शो करेगा. देयर विल बी सम जीन्स. सो आई एम फीलिंग हंटिंगटन इज यूजिंग दैट, कि देयर विल बी सम सिविलाइजेशंस व्हिच आर कंफ्यूज्ड, some are submerged and some are aggressive and some are regressive. So North America और इवन खासकर अफ्रीका को ये कहता है कि these are the civilizations, अफ्रीकन को तो कंफ्यूज किया गया है ये. तो आई हैव ए फीलिंग एंड दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज बुक रिव्यू हम कर रहे हैं, कि वो जो जेनेटिक डिस्कोर्स था कि यार कुछ जीन्स एग्रेसिव होंगे, कुछ इंडिपेंडेंट अजार्टमेंट शो करेंगे, एंड दैट वाज आल्सो यूटिलाइज्ड. इवन सोशल डार्विनिज्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला डॉक्ट्रिन भी यूटिलाइज किया गया है, और जिसमें नॉर्थ अमेरिका पे बात की गई है. लेकिन ये एक बात कही गई है कि जो वेस्टर्न क्रिश्चियनडम है, एक डॉक्ट्रीन है, जिस तरह एक सो कॉल्ड डॉक्ट्रीन है हर एक बंदे का इस्लामिक सिविलाइजेशन में, इस्लामिक वर्ल्ड या ग्रेटर इजराइल या समथिंग लाइक दैट, इस तरह एक वेस्टर्न क्रिश्चियनडम एक आइडियोलॉजी रही थी चर्च की. इसमें वो अपने आप को कहां से बाहर निकालेंगे, नहीं निकाल पाए. तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट दैट मच अजार्टेड सिविलाइजेशन. देन अफ्रीकन सिविलाइजेशन लिखता है पेज 47 पे, लेकिन खुद हंटिंगटन लिखता है, अगर आपका कैमरामैन फोकस करेगा, ये पॉसिबली क्यों लिख रहा है, अफ्रीकन पॉसिबली. तभी मैंने कहा कि जिस तरह वो जेनेटिक थ्योरी वाला होता था ना, कि पॉसिबली ये भी शायद होंगे. तो खुद हंटिंगटन कहता है ये देखो ये कंफ्यूज सिविलाइजेशन है, लेकिन पॉसिबली लिखता है कि आगे बढ़ेगा. और इस पॉसिबली को मैं समझ सकता हूं, जिस तरह एक आज के दौर में अफ्रीकन कंटिनेंट की कॉन्शियसनेस रिगेन हो रही है, ब्लैक इज ब्यूटी का डॉक्ट्रिन चल रहा है, कि ब्लैक पावर की बात कर रहे हैं, और ब्लैक जो पहले बिल्कुल शर्म से बोलते थे, आज सब बोल रहे हैं हैव ए प्राइड ऑन बीइंग ब्लैक. जिस तरह वी हैव ए ब्लैक प्रेसिडेंट इन व्हाइट हाउस, ओके, जिस तरह वी हैव ए सिविल राइट्स मूवमेंट, आई हैव ए ड्रीम, जिस तरह वी हैव ए लिबिया या बाकी चीजें जो सो कॉल्ड अफ्रीकन कंटिनेंट्स थे आगे आने की बात कर रहे थे, और जिन्होंने अभी हाल ही में जिम्बाब्वे का प्रेसिडेंट जो एक कमेंट्स दे रहा है या बाकी चीजें, तो वो कह सकते हैं कि पॉसिबली वाला पोर्शन भी कवर हो सकता है. और इसी में सर आगे ये कर रहा है बातें, फिर ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन की, इस्लामिक सिविलाइजेशन की, सिनिक सिविलाइजेशन की, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो हम कल के लेक्चर में कवर कर चुके हैं. ठीक है सर. अब यहां पर ये थोड़ा सा बात कर रहा है ईस्ट और वेस्ट की, थोड़ी सी हटके. देखिए ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, क्या है ईस्ट, मशरिक है, मशरिक, वेस्ट क्या है, मगरिब, हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ज्योग्राफिया है. लेकिन ये कहता है, और हकीकत भी है, ज्योग्राफिया पूरी नहीं है. इट इज जियो आइडियोलॉजिकल, जियो कल्चरल एंड जियो पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड. मैं सिंपल मिसाल लेता हूं, बोलते हैं सनराइज इन द ईस्ट सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन कभी कभी तो इधर भी करता है, कभी तो उधर भी करता है. सो ईस्ट और वेस्ट को हंटिंगटन कहता है इट इज नॉट अ ज्योग्राफिकल बट ए सिविलाइजेशनल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, एंड द अदर नेम ऑफ ईस्ट इज ओरिएंट and the other name of west is occident, and the whole, agar we look at Huntington's this understanding from Orientalism, a very important book written by Edward Said, very important book, Orientalism, and other neo post colonial authors, they have completely said that Orient was intentionally kept negative. Whatever is good in the world as per these theories belongs to Occident. Whatever is negative, barbarian, slavish, even Rudyard Kipling said that it's white man's burden to civilize the uncivilized man. Even Winston Churchill said that if we would have left India, India would have ruled by the ghouls. Even
मोंटागू चेम्सफोर्ड 1917 का जो ये डिक्लेरेशन है ना, उसका प्रेम्बल अगर हम पढ़ते हैं सर, उसके प्रेम्बल में लिखता है कि हम प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन करेंगे, इंस्टीट्यूशंस देंगे सेटअप वाइज में, टू ट्रेन द पीपुल इन द आर्ट ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। तो ट्रेन द पीपुल, समझिएगा, बात समझने की है, कहने की कम समझने की ज्यादा है। कि देखे वो समझ रहे थे हम तुम पे एहसान कर रहे हैं कि तुम समझ जाओ कि कैसे तुम खुद पे हुकूमत करोगे। मींस ओरिएंट्स वर नॉट इवन कैपेबल ऑफ रूलिंग ओवर देमसेल्व्स। इतने जाहिल थे ये, इतने गुलाम थे, जाहिल थे, अनसिविलाइज्ड बार्बेरियन थे। तो ये वाला पोर्शन भी हंटिंगटन कवर करता है ईस्ट और वेस्ट के डॉक्ट्रिन पे, एक फुटनोट के डॉक्ट्रिन पे। उसके बाद सर सिविलाइजेशंस बिफोर 1500 में, ऑब्वियसली अगर आपको पता चले सर, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जो हुई थी, उससे पहले 30 साल की जंग हुई थी, 1648 सर, 1648। 1648, the Treaty of Westphalia was the output of 30 years bloody war। और उसको एनालाइज करता है कि वो सब सिविलाइजेशनल वार्स थे। और उसके बाद अपने अपने लोगों ने समझा चलो भैया अपनी अपनी सिविलाइजेशन का मुल्क बना ही लेते हैं। और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया को उस हिसाब से, मैंने कहा कि हर स्कॉलर का एक विंटेज पॉइंट होता है सर, और ये उस विंटेज पॉइंट से हिस्ट्री को देखेगा। जिस तरह कार्ल मार्क्स बोलता ही नहीं है जनाब कुछ नहीं है, थर्ड कुछ नहीं है, 2 क्लासेस हैं, बाकी कोई तीसरा है ही नहीं, हैव्स एंड हैव नॉट्स हर जगह। इसी तरह ये हर चीज को सिविलाइजेशन की निगाह से देखेगा, हर चीज को, तहजीब और तमद्दुन से बाहर जाएगा ही नहीं। तो इसी के बाद वो बात करता है सर, जो समय कि देखिए वेरी इंपॉर्टेंट बात, पेज 49, द अर्लियर सिविलाइजेशंस इन द वैलीज ऑफ नाइल, इजिप्शियंस, टिग्रीज एंड यूफ्रेटिस, ज्यूइश, इंडस, इंडिया, येलो रिवर्स आल्सो डिड इंटरैक्ट, ये भी इंटरैक्ट, हर दरिया को भी बोलते हैं ज्योग्राफिकल दरिया, बट टिग्रीज, रिवर ऑफ यूफ्रेटिस, रिवर ऑफ नाइल, रिवर ऑफ इंडस, these are civilizational rivers because bigger civilizations were with these people, with these rivers, identified with these rivers. And then sir, he is talking about why West was superseding, because their civilization was powerful. It is not about technology. And here Huntington, as I told you, Huntington is using deductive method. He has conclusion to prove West is victorious. Now he will put the whole research into that West was important because their civilization was more strong. And he is talking about despite Byzantium defeats in 1648. 1448, I think, when the Ottomans defeated the Byzantinians, and the Byzantine Empire was completely dislodged. The victory, the War of Constantinople, 1452. Yeah, War of Constantinople, 1452. So in that war, this was a major threat to the West, but despite it survived all the encounters, and they have a control on international trade, they have a control on technology, they have control on the sea routes, they have control on the crops, and inter-civilizational linkages में सबसे ज्यादा यही थे। तो इसकी वजह से ये आगे गए, और ये आगे जाने में एक और चीज ही, इनके पास एटलीस्ट मल्टी सिविलाइजेशनल सिस्टम को इंटरैक्ट और इंटेक्ट करने की कैपेसिटी थी अपनी सिविलाइजेशन के होते हुए भी। जैसे खुद यहां अंग्रेज आए, हिंदुस्तान आए, तो देखिए बिफोर दे कुड हैव डिफीटेड अस पॉलिटिकली, they defeated us economically in the form of East India Company, and in the very East India Company they were defeating us culturally. You snake charmers, our dress codes were made fun, tie was called symbolic, टर्की चौपड़ी को शर्म आने। उन्होंने क्या किया सर, अंग्रेज जब यहाँ आए थे, थोड़ा समय एक ओरिएंटलिज्म की किताब है, मरियम जमीला की किताब सर, उसमें ये लिखा है कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे तो यहाँ जो गुलाम लोग, जहाँ जो हमारे शाही ड्रेस थी, कुर्ता और ये पकड़ी पहनना, उन्होंने अपने गुलामों को ड्रेस पहनाए, अपने गार्ड्स को। और आज भी हमारे बड़े बड़े होटल में जो गार्ड्स होते हैं, ताज हो, ये हो, बंबई का ये हो, तो बड़ी दाढ़ी वाले और बड़े पकड़ी वाले सलूट करते हैं बाहर पर। वो ड्रेस जो हमारा था, वो अंग्रेजों ने गुलामों को लगवाया, मुलाजमों को लगवाया, जो हम चौकीदारी पे लगाते हैं। सो मरियम जमीला एनालाइज करती है कि फिजिकल स्लेवरी इज इनसेपरेबल फ्रॉम कल्चरल स्लेवरी।
सो इस कंटेक्स्ट को ये जस्टिफाई करता है हंटिंगटन सब्जेक्टिवली कि हमारे पास मल्टी सिविलाइजेशनल लिंकेजेस को इंटैक्ट करने की कैपेसिटी थी. दैट्स वाई वी एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट वाज दैट. लेकिन ये भी मानता है द एक्सपेंशन ऑफ वेस्ट ended with World War II to some extent threatened. And जब तुम एंड ऑफ हिस्ट्री के नाच गाने कर रहे हो 1990 में, भैया वेस्ट की एक्सपेंशन खत्म हो रही है, न्यू पावर्स आर कमिंग एंड रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट हैव बिगन. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉल्ट अगेंस्ट द वेस्ट एज पर हिम इज एथनो नेशनलिज्म एंड रिलीजियस फंडामेंटलिज्म. और ये क्यों आएगा? क्योंकि ये जो तुम मल्टीकल्चरलिज्म या ग्लोबल कल्चर की बात कर रहे हो, ये एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. एंड जो आज की सिविलाइजेशन है, आज की सिविलाइजेशन पे कंक्लूजन करता है 8 पे. सर ये 8 पे करता है इन द वन साइड. और ये जो वार्स होंगी, अभी हम वार पे पहुंचे नहीं, क्लैश पे पहुंचे नहीं, अभी हम बिल्डअप कर रहे हैं. ये लीनियर क्लैश नहीं होगा, ये स्पेक्ट्रम सर्कुलर वार होगा. इट विल नॉट बी लीनियर इस लाइन की तरह नहीं होगा, सर्कुलर भी होगा, जिगजैग मैनर में भी होगा. और ये 8 कौन नाउन तो है, लेकिन असल में 8 ही बताई है इसने. बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन को थोड़ा सा लिखा, ज्यादा कुछ नहीं लिखा है. थोड़ा सा श्रीलंका का टच किया, वियतनाम का थोड़ा सा, ज्यादा नहीं लिखा है. वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लैटिन अमेरिकन सिविलाइजेशन, लेकिन इतना इसको डार्क शेड नहीं करता, इसको ऐसे लाइन देता है. देखो सर, इसको लाइन देता है, मतलब इतनी नहीं है. जो अचीव पॉसिबली अफ्रीकन इस्लामिक सिविलाइजेशन को थोड़ा सा हाईलाइट करता है, सिमिक सिविलाइजेशन को पूरा हाईलाइट करता है, हिंदू सिविलाइजेशन को डॉट्स देता है बीच में, बोलता है कि नहीं कंफर्टेबल है, मिल सकती है, इतनी भी नहीं है, मिल सकती है. ऑर्थोडॉक्स सिविलाइजेशन पे सर दिस एस्पेक्ट ऑफ दिस बुक इज इग्नोर्ड. ये एस्पेक्ट किसी ने उठाया ही नहीं है. चौथे चैप्टर में जब हम पहुंचेंगे तो रशिया को ये सक्सेसर बोलता है बाइजेंटेनियन एम्पायर का, और ये कहता है कि रशिया विल रिवाइव द रूट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी. और अगर मैं आज प्यूटिन के हिसाब को एनालाइज करता हूं तो सर आई एम फाइंडिंग इट ऑन दैट, ऑल्दो आई एम नॉट, इट इज नॉट एज व्हाट, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था इनकलाब आएगा, तो रशिया में इनकलाब आया तो कैसे? कार्ल मार्क्स के हिसाब से तो नहीं आया ना, उस तरह नहीं आया जिस तरह कार्ल मार्क्स बोलता वॉलंटरी कॉन्शियसनेस होगी, गुलामों में ये आएगा वो आएगा. वहां तो जनाब एग्रीकल्चर कल्चर, कार्ल मार्क्स ने कहा था इंडस्ट्रियल सोसाइटी में इनकलाब आएगा, आया एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, लेकिन स्टिल क्रेडिट वाज गिवन टू कार्ल मार्क्स. तो मैं इस हिसाब से इन द मोस्ट रिग्रेसिव फॉर्म ऑफ इट, प्यूटिन, द वे प्यूटिन इज रिवाइविंग ऑन द वन साइड द रूट्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी इन रशिया, and the way Mr. Erdogan is reviving the traditional orthodox roots of Ottoman Empire. तो ये दोनों चौथे चैप्टर में बात करता है उस हिसाब से कि अटाटर्क्स लेगेसी क्या थी और लेनिन की लेगेसी क्या थी, एंड द रोड अहेड फॉर टर्की ये बोलता है कि दे हैव टू रिजेक्ट द अटाटर्क्स लेगेसी एंड दे हैव दिस Putin जस्ट लाइक रशियंस हैव रिजेक्टेड दिस. अटाटर्क्स की लेगेसी में सर उस वक्त जो बोलता भी है, मैं कंक्लूड करता हूं, चैप्टर हमारा आज का लेक्चर कंक्लूड भी हो जाएगा क्योंकि सिविलाइजेशन ऑफ टुडे में अटाटर्क्स की जो बात करता है सर वो पेज 56 के करीब है. वो ये कहता है कि जिस तरह अतातुर्क ने कोड्स भी रूम से लाए थे, और इनफैक्ट हम आगे पढ़ेंगे भी कहां से थे वो, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे. तो वो ये कहता है कि इंटेंस सेकुलराइजेशन हो गई थी. अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1922-23 में ऑफिशियली खिलाफा एज ए इंस्टीट्यूशन इन टर्की वाज डिसलॉज्ड. एट द सेम टाइम देयर वाज वन पोएट बाय द नेम ऑफ इकबाल, उसने उसी वक्त एक बात कही थी. यस, अल्लामा इकबाल, पोएट ऑफ ईस्ट उसको कहते भी हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है इस पे सिविलाइजेशनल लिंकेजेस पे, क्योंकि ईस्ट है चाइना आल्सो, ईस्ट है जापान आल्सो. तो from civilizational linkages I have a disagreement with this title of poet of east. या अगर तुम ईस्ट को इस्लामिक सिविलाइजेशन से मिलाओगे फिर आई कैन एग्री विद दैट, लेकिन दैट वाज शॉर्ट नोट. मैं कहता हूं कि इकबाल ने 1923 में यह कहा था जब खिलाफा डिसलॉज हो गई, एक शेर कहा था उर्दू में, और रिकंस्ट्रक्शन में कुछ इंग्लिश में किताब भी लिख चुका है इकबाल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम. उसमें वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क को जस्टिफाई कर गया. देयर इज अ कंफ्यूजन, इकबाल इंग्लिश में कुछ और कह रहे हैं, उर्दू में शेर कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ये तो क्रिटिसिज्म होता है सर, क्रिटिसिज्म तो क्रिटिकल अप्रेजल होना चाहिए हर बंदे का. इंग्लिश में वो थोड़ा जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो हमारा टॉपिक नहीं है. टॉपिक है उर्दू में जो शेर कहे गए थे जिस वक्त खिलाफा डिसलॉज हो गया था, वो कहे गए चाक कर दी तुर्क नादा, वो मुस्तफा कमाल अतातुर्क को तुर्क नादा कह गए. चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा,
चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबा, सादगी अपनी भी देख औरों की अयारी भी देख। इट वॉज सेड दैट कि देखो तुम तो सेकुलरिज्म के नाम पे सब कुछ लुटा चुके हो, सिविलाइजेशनल लिंकेजेस, लेकिन जिनके नाम पे तुम लुटा चुके हो वो सेकुलराइज नहीं रहेंगे। ठीक है। और आगे एक जगह कह गए जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन से मिलता है, जो आपने शॉर्ट वीडियो में डालोगे भी आप, जिसकी आप शॉर्ट वीडियो बना पर डाल भी रहे हो, या गालिबन डाल भी दी। वो ये कह रहे हैं कि दुनिया को है फिर कंक्लूजन में, उसी में कंक्लूजन में, जो उस शेयर के बाद कंक्लूजन में, कि देखो दुनिया को है फिर मुअरका रूह बदन पेश। मैंने जैसे बताया था कि रूह और बदन, देखिए ये डिवीजन हो गया था मेडिवल, जब हिस्ट्री लिखी जा रही थी मेडिवल वर्ल्ड में, कि गॉस्पेल ऑफ ल्यूक का डॉक्ट्रिन आया था, रेंडर टू गॉड व्हाट इज ऑफ गॉड्स, रेंडर टू सीजर व्हाट इज ऑफ सीजर्स। बादशाह को वो दो जो बादशाह का है, और खुदा को वो दो जो खुदा का है। तो वहां से आया एक थ्योरी ऑफ टू सर्वर्स, ग्रेगरी ने लिखी, और ग्रेगरी के बाद इसको बाकी ने भी लिखा, लेकिन इसका जो मतलब कंक्लूजन ये था कि देखिए इंसान जिस्म भी है रूह भी है। जिस्म खाना है, रूह तकवा है, तकिया है, तकिया रूह पाइटी है, इल्म है, भगवान है, ऊपर वाला है। तो इसीलिए जो समाज में दो इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है स्टेट वो जिस्म को कंट्रोल करेगा, एक है चर्च जो रूह को कंट्रोल करेगा। द नीड्स ऑफ स्टेट विल बी फुलफिल्ड, नीड्स ऑफ बॉडी विल बी फुलफिल्ड बाय द स्टेट एंड नीड्स। लेकिन ये टू नेशन थ्योरी के उसी कंटेक्स्ट में इकबाल कह रहे हैं दुनिया को है फिर मुअरका रूह बदन पेश। उस वक्त इनकी आगे में बड़ी लड़ाई हुई, स्टेट रूलर कभी खतरनाक, कभी पोप खतरनाक, और एक वक्त ऐसा आया पोप ने स्टेट को भी कंट्रोल किया भाई। 1200 से पहुंचते पहुंचते ये बन गया क्रिश्चियनडम, वेस्टर्न क्रिश्चियनडम, जिसको कुछ डार्क एज भी कहते हैं। कॉपरनिकस को फांसी दी गई क्योंकि उसने चर्च के खिलाफ, स्टेट के चर्च के खिलाफ कुछ बोला। गलीलियो को माफी मांगनी पड़ी क्योंकि उसने कुछ थ्योरी ऐसी दी थी जो चर्च बिब्लिकल डॉक्ट्रिन के खिलाफ था। एक रूलर ने कुछ कह गया, गलत बात कह गया, तो एक पॉप बेनेडिक्ट 14 की क्या नाम है, उसने उसको लिखा चिट्ठी, बोला इधर आ जा, धा मारा तुझे मैं काफिर डिक्लेयर करूंगा, आ जा इधर, तुझे मैं मतलब आउट ब्लैस्फेमस डिक्लेयर करूंगा। वो बादशाह डरा और वो पोप के पास गया, और उस पोप ने उस बादशाह को 3 दिन नंगा बर्फ पे लिटाया और वो बादशाह मर गया। तो इस लेवल का मुआरका हुआ था चर्च और स्टेट का। और बाद में जब स्टेट के पास पावर आई तो इन्होंने भी वही किया चर्च के साथ, और उनको कन्फाइन करते 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 वेटिकन सिटी तक लाए, बाकी भैया उधर ही है तुम्हारा पावर, बाकी कहीं नहीं है। तो इकबाल कहते हैं दुनिया को है फिर मुअरका रूह बदन पेश। अब आज का बॉडी कुछ और है, आज का स्पिरिट कुछ और होगा। तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तो मीन्स देयर विल बी, एंड ही इज प्रेडिक्टिंग क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस इन दैट वे। Yes, and we can have a disagreement with him also, but he is predicting in the second way. तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा। तो it was yesterday also I told you, and this is the conclusion of the chapter 2, that civilizations in history and civilizations of today. The chapter 3 will begin with a universal civilization, and where there will be a debate between westernization on one side and modernization on other side. And this debate will cover what is westernization, and is westernization different from modernization, or is modernization overall a different doctrine. We will cover it tomorrow.